Hello everyone. Today we will talk about a short story, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. In this story, the prince is not a living person. It is a statue located on a high pedestal in a city, whose eyes are of two valuable sapphires, and his whole body was covered with golden leaves. And there was a precious ruby studded in his sword hilt. द प्रिंस जो है इस स्टोरी में वो एक लिविंग पर्सन नहीं है, वो एक स्टैच्यू है कि जो एक सिटी के अंदर एक पेडेस्टल के ऊपर लोकेटेड है. द स्टोरी टेल्स अस व्हाई एंड हाउ द प्रिंस गेव ऑल हिज प्रीशियस ज्वेल्स एंड गोल्ड्स टू नीडी पीपल. So let's start the story. In this story there are two main characters, the little swallow bird and the happy prince. Once a swallow bird traveling to Egypt, his friend had left him 6 weeks ago. So the swallow bird flying to Egypt alone. He is continuously flying, and one night he saw a city and he decided to take a rest for that night and resume flying tomorrow. एक swallow bird होती है जो विंटर्स के लिए इजिप्ट ट्रैवल कर रही होती है अकेली. कंटिन्यूसली फ्लाई करने के बाद उसे एक दिन सिटी दिखता है, तो वो रेस्ट करने के लिए वो रात में रुक जाती है. सो ही केम डाउन एंड सैट ऑन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. Swallow thought he got a golden bed for the night, but as he tries to fall asleep, a water droplet fall on his head. He looked at the sky. There was no cloud. Suddenly, second droplet fell. So he decided to flew. Before he fluttered wings, third droplet fell. Swallow looked upward to the prince, and the prince crying, and his tears are falling on the swallow. The swallow flew and sat on the prince's shoulder and asked him, "Why are you crying?" Swallow जहाँ पे रेस्ट लेती हो वो प्रिंस के फीट हैं और प्रिंस के टीयर्स उस पर गिर रहे हैं. सो स्वैलो उसके शोल्डर पे जाके पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो. यू आर मस्ट बी द हैप्पी प्रिंस ऑफ द टाउन, सो व्हाई आर यू क्राइंग. प्रिंस टेल अस द स्वैलो he said that when he was alive he was the most happiest person in the city. He never felt sad and never cried. So after his death, mayor and the councillors made her statue and put him there. वो स्वेलो को बताता है कि जब वो ज़िंदा था तब वो काफ़ी खुश और हंसता रहता था, वो कभी दुखी नहीं हुआ. सो उसके मरने के बाद मेयर और काउंसिलर्स ने बाकी सिटी के लोग एडमायर कर सके उसके लिए उसकी एक स्टैच्यू बनाई और उसे उस पेडेस्टल पर रख दिया. सो दैट एवरीबडी कैन एडमायर मी एंड बी हैप्पी ऑलवेज. सो सब उसको एडमायर कर सके और हैप्पी रह सके. तो स्वेलोर ने कहा ये तो अच्छी बात है, सब लोग तुम्हें एडमायर कर रहे, सो देन व्हाई आर यू क्राइंग. देन द हैप्पी प्रिंस सेड, but from here I can see all the ugliness and all the misery of city, and though I cannot stop myself and weep. यहाँ खड़े रह के द प्रिंस बोला कि मैं सिटी की पूरी अगलीनेस और मिसेरी देख सकता हूँ और इससे मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकता. स्वेलो कुछ समझा नहीं. Then the prince pointed to a little house on a far away the street. So यहाँ से शुरू होता है कि द गिव अवेज, जो रूबी सफ़ायर्स और जो गोल्ड दिए वो. द प्रिंस एक हाउस को पॉइंट करता है जो स्ट्रीट के एकदम लास्ट में है. whose window is open, and a woman was sitting on the table who was very hungry and tired and embroidering on a gown for the queen's maid. She is a seamstress. In a bed, her boy is shivering from fever and lying ill. They don't have anything to eat. द प्रिंस स्वेलो को बताता है कि वो इसी स्ट्रीट में लास्ट में एक घर है
जहाँ पे एक वुमन उसके बच्चे के साथ रह रही है। जो वुमन एक सीमस्ट्रेस है और अपना काम करते थक चुकी है, और उसका बच्चा लाइंग ईल में है, मतलब बीमार है। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। सो प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू बी हिज मैसेंजर एंड ordered swallow that pluck the ruby from his sword hilt and gave to them. द प्रिंस swallow को बोलता है कि तुम मेरे स्वॉर्ड में से रूबी लेके जाओ और उन दोनों को दे दो, सो दैट दे कैन बाय समथिंग एंड ईट एंड फुलफिल देयर स्टमक. द swallow अग्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम. swallow अग्री करता है और वो जाके उनको रूबी दे आता है और वो लोग आके सो जाते हैं. फिर ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन द नेक्स्ट डे अराइजेस, द प्रिंस एंड द swallow they both talked about the ancient Egyptian monuments, the river Nile, Sphinx, pyramids, and all the other ancient monuments. On the second day night, the prince again requested the swallow to be his messenger. दूसरे दिन प्रिंस दूसरी बार उसको मैसेंजर बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है. एंड दिस टाइम he ordered swallow to pluck his one sapphire eye and give it to a young man whose home is last on the street, shivering from cold. swallow पूछता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि आपकी एक आई मैं नहीं प्लक कर सकता. The prince ordered him, do as I say. So at last swallow plucked the sapphire and goes to the young man and gave it to him, who was trying to complete his play for the theater director, and he has no firewood to keep him warm, so that with this sapphire he can sell it through the market and buy some firewoods to keep them warm. So दूसरे दिन वो एक यंग मैन के घर पर वो पॉइंट करता है और वहाँ पे वो यंग मैन डायरेक्टर्स के प्ले के लिए लिख रहा होता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो फायरवुड्स खरीद सके. सो प्रिंस swallow को कहता है कि तुम एक सफ़ायर लेके जाओ और उसको दे दो, वो इससे फायरवुड्स खरीद लेगा. सो swallow के काफ़ी टाइम ना बोलने के बाद भी वो जाता है और वो उसे एक सफ़ायर दे देता है और वो वापस आके वो लोग सो जाते हैं. देन थर्ड डे अराइजेस. ऑन द थर्ड डे swallow गोज़ टू हार्बर मतलब जो पोर्ट होता है वो, एंड डिसाइडेड दैट ही विल लीव द सिटी एट द नाइट. उसी रात वो सिटी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है. बट व्हेन ही केम टू द प्रिंस टू से गुड बाय, जो वो गुड बाय बोलने के लिए आता है, देन द प्रिंस टेल हिम दैट वन मोर टाइम बी माई मैसेंजर. वो फिर एक बार बोलता है कि बी माई मैसेंजर. सो swallow एक्सेप्टेड कि ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेंजर बनूंगा, लेकिन मैं इस बार निकल जाऊंगा क्योंकि विंटर्स आने वाली है और मुझे इजिप्ट पहुंचना है. द प्रिंस टेल्स हिम अबाउट द मैच गर्ल हुज मैचेस आर फेल इन अ गटर, एंड इफ शी गोज होम बेयर हैंड हर फादर विल बीट हर. वो उसे एक मैच गर्ल के बारे में बताता है कि जिसके मैचेस गटर में फेल होके बिगड़ चुके हैं, और अगर वो खाली हाथ घर जाएगी तो उसके फादर उसे बीट करेंगे. सो ही ऑर्डर्ड swallow that pluck his second sapphire eye and give it to that match girl, so that his whole family can buy food from this sapphire, and her father will also not beat her. वो उसे ऑर्डर करता है कि उसके जो दूसरी सफ़ायर आई है वो भी निकाल के उस मैच गर्ल को दे दे, ताकि वो उसका पूरा घर उससे बेच के खाना खा सके और उसको डांट भी ना पड़े. देन द प्रिंस ऑर्डर्ड टू डू सो. आफ्टर
giving the sapphires. When the swallow returns to the prince, then he says that now I will never let you alone. मैं कभी तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ऐसा swallow बोलता है, क्योंकि from now you are blind, so I will be always with you. प्रिंस कहता है कि अब विंटर्स आने वाली है तो तुम चले जाओ, लेकिन स्वैलो मना कर देता है. फिर वो लोग तीसरी रात को भी सो जाते हैं. फिर ऑन द फोर्थ डे व्हेन द नाइट अराइव्स, द प्रिंस टेल्स अबाउट द बेगर्स एंड द पुअरर्स in the city who are hungry and felt cold, who are lying in ill. He also pointed two boys on the archway bridge. एक आर्कवे ब्रिज होता है जिसके नीचे दो भाई, छोटे छोटे दो भाई होते हैं, दो बच्चे, वो ठंडी में ठिठुर रहे होते हैं. और ऐसे कई सारे बेगर्स उनकी सिटी में हैं कि जो ठंडी और खाने की कमी से जूझ रहे हैं. सो द प्रिंस ordered the swallow that pluck all the gold leaves one by one and give it to all the poor and needies of the city. प्रिंस जो होता है वो उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर रहे हुए हर एक गोल्ड लीफ को प्लग करो वन बाय वन और सभी नीडी और पुअर्स को दे आओ. सो स्वैलो एक्सेप्ट कर लेता है और वो पूरी रात ये एक लीफ सबको दे देता है. नाउ जैसे ही गोल्ड लीफ सारे चले जाते हैं, द प्रिंस बिकम डल एंड ब्लैक एज देयर वॉज नो गोल्ड लीफ ऑन हिमसेल्फ. द शाइनिंग वो भी चली जाती है, द लाइटनिंग वो भी चली जाती है. द स्वैलो रिटर्न्स एंड टेल द प्रिंस दैट ही वॉज गोइंग टू गॉड्स होम. फिर उस रात ठंडी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि विंटर अराइव हो चुका होता है. स्वैलो प्रिंस को आकर आता है और ये बोलता है कि नाउ उसका मरने के टाइम आ चुका है, क्योंकि अब इतनी ठंडी में वो ज़िंदा नहीं रह सकता. और ये कह के वो स्वैलो प्रिंस के फीट पर गुड बाय बोलकर दम तोड़ देता है. फिर दूसरे दिन सुबह जब मेयर्स और काउंसिलर्स सुबह स्टैच्यू को देखते हैं तो वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि स्टैच्यू पूरा डल और ब्लैक हो चुका है, तो इसे उस पेडेस्टल पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो दे डिसाइडेड टू टेक डाउन द स्टैच्यू, एंड व्हेन दे टेक डाउन दे ऑल्सो सो अ डेड स्वैलो. वो ही डेड स्वैलो कि जिसने गोल्ड लीव्स और सफ़ायर्स और वो सब प्लग किए, वो उनको दिखती है. तो वो उसे भी एक छोटी सी जगह पर रख देते हैं, और जो स्टैच्यू होता है उसे वो लोग मेल्ट करके एक लेड का पीस बना देते हैं और उसे गार्बेज में फेंक देते हैं. फिर दोनों के पास अवे हो जाने के बाद उनकी हेल्पिंग अदर्स नेचर्स के बेनिफिट और एडवांटेज से दे बोथ गॉट प्लेस इन गॉड्स हेवन. गॉड अपने दोनों एंजल्स को भेज के सबसे अच्छे और सबसे हेल्पिंग अदर्स नेचर वाले लोगों को बुलाता है, जिसमें द हैप्पी प्रिंस और स्वैलो हैं. दे बोथ गॉट प्लेस इन गॉड्स हेवन वेयर गॉड आस्क स्वैलो टू सिंग इन हिज गार्डन्स एंड द हैप्पी प्रिंस टू प्रेज हिम इन द सिटी ऑफ गॉड्स गोल्ड. सो हेयर बेसिकली आवर चैप्टर इज़ ओवर. सो ये चैप्टर में हेल्पिंग अदर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय ऑस्कर वाइल्ड. प्रिंस और स्वैलो अपनी पूरी मेहनत करके उस सिटी में रह रहे हर एक पुअर और नीडी को हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गॉड्स हेवन में जगह मिलती है. सो हियर आवर चैप्टर विल ओवर. I think you will understand the chapter. And so अगर आपको अच्छा लगा तो please like, share and subscribe. I'll frequently post such educational videos on my channel. And if you have any doubt,
you can ask me in the comments. Thank you.